अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। अकबरुद्दीन ओवैसी की यकीन दहानी, मूसा नदी के किनारे रिहायशियों को बेदखली का खतरा नहीं। उत्तर प्रदेश की 10 खाली असम्बली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात, कांग्रेस का इत्तेहाद के उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला। NIA की कार्रवाई, अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम। गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात, इजराइल और हमास के तरफ से अहम पेशरफ्त। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की काज़ान में अहम नेताओं से मुलाकात। रियासत तेलंगाना इस साल 150 मिलियन मीट्रिक टन धान की पैदावार के साथ अपनी आला तरीन पैदावार हासिल करने के लिए तैयार है। आबपाशी और शहरी सप्लाई के वज़ीर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमरात को यह ऐलान किया। गवर्नर जश्नदेव वर्मा के साथ ज़िली अहदेदारों और अहम शख्सियात के साथ गुफ्तगू करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत की ज़रूरी तरक्की और हुकूमत के वसी पैमाने पर खरीदारी और फूड सिक्योरिटी इक़दाम की वजाहत की। Proper machinery is there, proper tarpaulin is there, gunny bags are there. Every single thing required to make procurement a success. Collector Garu, as the Chief Minister said in his video conference on collectors, it has to be done flawlessly. You have any problems, please get back to the Civil Supplies Commissioner immediately. Okay, any issues. And please keep ready sufficient amount of intermediate godowns. You can have both arrangements of working with the rice millers and of having intermediate godowns. Now, sir, about irrigation, this district is blessed to have the Krishna River flowing on one side, right through one side, and from end to end. And the Nagarjun Sagar Dam is in the combined Nalgonda district, but the main left canal flows through entirely the Suryapet district. Like the collector explained to you, the Nagarjun Sagar project, SRSP, Musi project, lift irrigation schemes, and the tanks, totally the Ayakat is about 6.16 lakh acres. We are continuously trying to increase that so that irrigation water should reach every acre. That's the way we are going forward. I must briefly take you back to the history of Suryapet district and to the history of Telangana, sir. Telangana had a very, checkered history. We did not become independent on 15th August 1947. As you must be aware, sir, in the erstwhile Nizam state, when India became independent, Nizam was not as yet acceding to the state. So, then anyway, there was, one is this area, even before independence, has been a hotbed of revolutionary movements, including the communist movement against the then Jagirdari landlord movement. Thousands of people were killed and land reforms in its initial stages was there. That was just before independence when there was an armed struggle against excess land holding, and then of course the armed struggle continued against the Razakars of the Nizam time. Then anyway, after 1947, various kinds of parleys took place between the then Jawaharlal Nehru government and the Nizam, and you'll be happy to know that in September 1948, on this road which you came, tanks moved from Vijayawada to Hyderabad. That is then when the then Nizam accepted to surrender to the Union of India. So this was the road on which the border of the Telangana and Andhra Pradesh is very close by here. So Suryapet, you cross this. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मूसा नदी के किनारे मुकीम अफराद को यकीन दहानी कराई है कि उन्हें यहाँ से बेदखल नहीं किया जाएगा। नदी के अतराफ और बफर जोन में रहने वाले अफराद खौफ में मुब्तला है कि मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत उनके मकानात मुनहदिम किए जा सकते हैं। ओवैसी ने इन खदशात को मुस्तरद करते हुए रिहायशियों को यकीन दिलाया है कि उनकी आबादियाँ महफूज रहेंगी।
देखिए, हमारी पहली अव्वलीन कोशिश ये रहेंगी कि आपका घर ना जाए, लेकिन अगर ऐसे हालात आ रहे हैं कि नहीं जरा इधर या इनका कुछ जा रहा है, 1 रुपया कीमत है तो 1 रुपया 10 रुपये दिलाऊंगा मैं, ये मेरा वादा। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 रुपये का है वो 2 बेडरूम में चले जाओ, छोड़ दो, सवाल ही नहीं है। बेफिक्र रहो, मेरी जिम्मेदारी में जबान दे रही इतने लोगों के सामने, बेफिक्र रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं हमें, और हम वही करेंगे जो आप बोले, उससे हट के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो हम हैं, आराम से सो, आराम से घर में रहो, कुछ नहीं, हम सब देखेंगे। नायब सदर तेलंगाना बीजेपी रामचंद्र रेड्डी ने हल्का असम्बली चार मीनार में मूसा नदी के किनारों पर खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के तहत हैदराबाद के इंतजामिया की कार्रवाई से मुतासिर अफराद से मुलाकात की। उन्होंने पुराने पुल और बटला ब्रिज के मुतासिरीन से भी गुफ्तगू की और उन्हें यकीन दिलाया कि बीजेपी उनके साथ खड़ी रहेगी। इस प्रोग्राम में बीजेपी के रहनुमा पांडु यादव, साबिक तर्जुमान मीर फिरासत अली बाकरी, कन्वेनर पनवीर कुमार और दीगर बीजेपी कायदीन भी शरीक थे। समुद्री तूफान दाना ओडिशा के साहिली इलाकों से टकरा गया है, जहां महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान का लैंडफॉल जारी है और हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच चुकी है। इस तूफान के बाद ओडिशा और मगरबी बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिशों का इत्तलात भी मौसूल हुई है। बाज़ इलाकों में तेज हवाओं की वजह से दरख्त गिरने के वाकयात भी सामने आए हैं। सूरत हाल के पेश नज़र ओडिशा और बंगाल में कौमी आफात से निपटने के लिए NDRF की टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भुवनेश्वर और कोलकाता के हवाई अड्डों को भी बंद कर दिया गया है ताकि हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जा सके। नॉर्थ ऑफ धमरा एंड 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ हबेलीघट्टी कैंप, that is in Bhitarkanika, and now the current intensity is severe cyclonic storm and wind speed is about 100 to 110 km per hour, gusting to 120 km per hour. Landfall process continues and the rear sector of the cyclone is entering into the land, and the landfall process would continue for next 1 to 2 hours. It is likely to move nearly west-northwestward across North Odisha and weaken gradually into a cyclonic. उत्तर प्रदेश की 10 खाली असम्बली सीटों में से 9 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान इंतखाबी कमीशन के जानिब से किया जा चुका है। ये ज़िमनी इंतखाबात आइंदा 13 नवंबर को होंगे। कई सियासी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसके बजाय कांग्रेस 9 असम्बली सीटों पर उतारे जाने वाले इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चलाने का इरादा रखती है। की राजनीति और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से, जो कि देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, वहाँ पर होने जा रहे 10 उपचुनाव में कांग्रेस की भूमिका को लेकर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, और इन 9 सीटों पर आप सबको हम अवगत कराना चाहेंगे कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से देश में संविधान को कमज़ोर करने के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए एवं आपसी भाईचारे को नष्ट कर समाज को आपस में बांटने का अपना राजनीतिक एजेंडा सुनियोजित तरीके से चला रही है, और जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक करारा जवाब देकर उन्हें सचेत किया। आज उन्हीं मूल्यों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान को जनता के बीच में उसी सम्मान दिलाने, वही सम्मान को पुनः एक बार स्मरण दिलाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में माननीय राहुल गांधी जी देश में घूम घूम कर जिस संविधान का जिक्र करते हुए समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने हेतु, चाहे किसी वर्ग का, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक, इनके सम्मान और रक्षा के लिए जिस प्रकार से
संविधान को लेकर लोगों में जन जागरण की भावना जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी क्रम में इन्हीं मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए एवं इस अवसर पर जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव की और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर मैं और मेरे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी शीर्ष नेता, सीएलपी के नेता मुन्ना मिश्रा जी, हमारे सभी वहाँ के सांसदगण, वहाँ के वरिष्ठ नेतागण, सभी से चर्चा करने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से राज्य की राजनीतिक घटनाक्रम और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक तनाव की स्थिति प्रशासन के अनदेखी का बहाना बनाकर जो तनाव बढ़ रहा है, इन सभी राजनीतिक पहलुओं पर और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के साथ जो हमारी चर्चा हुई, इन सभी विषयों को लेकर उनसे हमने चर्चा की। पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय हमारे शीर्ष नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी, इन सब के साथ में गहन चर्चा करने के बाद एक मत बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आया कि आज वर्तमान राजनीतिक तनाव जिस प्रकार से सामाजिक तनाव उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन की निर्मित हुई, इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और वहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की इन सभी 10 विधानसभाओं में बहुत ही सफलतापूर्वक संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता और वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। और इस सफलता के बाद एक चीज़ का एहसास हमें हुआ कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को अगर हमने नहीं रोका तो आने वाले समय में यह संविधान, भाईचारा, आपसी सौहार्दता और भी कमज़ोर हो जाएगी। और इन्हीं चीज़ों को लक्ष्य में रखते हुए जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन 10 चुनाव में एक बहुत ही साहसिक शुरुआत करते हुए और लोकसभा चुनाव के नतीजों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई को मजीद तेज कर दिया है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई
अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है। अनमोल बिश्नोई, जो कि बदनाम जमाना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, गुलकार सियासतदान सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में भी मुलविस था। साल 2023 में तफ्तीशी एजेंसी ने अनमोल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और रिपोर्ट के मुताबिक वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए हिंदुस्तान से फरार हो गया था। अनमोल बिश्नोई मुबैना तौर पर अपना ठिकाना तब्दील करता रहता है और उसे पिछले साल केन्या और इस साल कनाडा में देखा गया था। मालूमात के मुताबिक अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 18 फौजदारी मामला दर्ज है और वो जोधपुर जेल में अपनी सजा काट चुका है। अनमोल को 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा किया गया था। चीन के सदर शी जिनपिंग ने ईरानी हम मुंसिब मसूद पजेश्कियान के साथ मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने का अहद का इजहार किया गया है। सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चाहे बैनुल अक़वामी और इलाक़ी सूरत हाल किसी भी तरह से तब्दील हो, चीन ईरान के साथ गैर मुतसलसल दोस्ताना ताउन को फ़रोग़ देगा। ये मुलाकात रूस के शहर कज़ान में ब्रिक्स ममालिक के सरबराही इजलास के दौरान हुई, जहाँ दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका मफादात और ताउन के नए मौक़े पर बातचीत की। इसराइल ने ऐलान किया है कि गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात में उसकी खुफिया एजेंसी के सरबराह शिरकत करेंगे, जबकि हमास ने इस अहद का इजहार किया है कि अगर मुआहिदा तय पाया जाता है तो वो लड़ाई बंद कर देगा। हमास के एक आला ओहदेदार ने खबर रसा एजेंसी AFP को बताया कि ग्रुप के दोहा में मौजूद रहनुमाओं के एक वफ्द ने जुमरात को काहिरा में मिस्री हुक्काम के साथ गाजा मुआहिदे के हवाले से ख्यालात और तजावीज़ पर बातचीत की है। ओहदेदार ने मजीद बताया कि हमास ने लड़ाई रोकने पर आमदगी का इजहार किया है, लेकिन इसराइल को भी जंगबंदी पर अमल करना होगा। उसे गाजा की पट्टी से निकलना होगा, नकल मकानी करने वालों को वापस आने देना होगा, कैदियों की तबादले पर संजीदगी से इत्तफाक करना होगा और गाजा में इंसानी इमदाद के दाखिले की इजाज़त देना होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जुमरात को रूस के शहर कज़ान में ब्रिक्स समिट के मौके पर फ़िलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इन मुलाकातों में गाजा की पट्टी की सूरत हाल, उसकी सलामती, इंसानी हमदर्दी के असरात और इसके हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। यह मुलाकात मौजूदा हालात में अहम बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए की गई है। आखिर में हेडलाइंस फिर। अकबरुद्दीन ओवैसी की यकीन दहानी, मूसा नदी के किनारे रिहायशियों को बेदखली का खतरा नहीं। उत्तर प्रदेश की 10 खाली असम्बली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात, कांग्रेस का इत्तेहाद के उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला। NIA की कार्रवाई, अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम। गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात, इजराइल और हमास के तरफ से अहम पेशरफ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की कज़ान में अहम नेताओं से मुलाकात। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।